Good morning, student. In our earlier classes, we discussed the pollinating agent. Mainly two types of pollinating agents are found, biotic and abiotic. First, we discuss abiotic agent like anemophily. Anemophily. Anemophily by बिंड किसके द्वारा होता है? बिंड के द्वारा होता है. दैट मीन्स द pollinating agent is wind or air. In anemophily, plants produces plant produces enormous amount of pollen grain. Enormous amount of pollen when compared to the number of ovules. When compared to number of ovules available for pollination, pollination to compensate the uncertainties of pollination. In anemophily, the flowers are well exposed. That means open flowered, and anther and stigma of the pistil is also open. That means flower with well exposed stamen. Flower with well exposed stamens. Well exposed stamen. Large feathery stigma to trap airborne pollen grain. जो स्टिग्मा होगा वो लार्ज होगा, फीदरी होगा, अट्रैक्ट करने के लिए या ट्रैप करने के लिए पोलन ग्रेन को. लार्ज फीदरी स्टिग्मा टू ट्रैप airborne pollen grain.
pollen grain. Most wind pollinated flower contain single ovule, contain single ovule, contain single ovule, single ovule in one ovary, in one ovary, in one ovary, and numerous flower and numerous flower packed into an inflorescence. For example, corn cob. In anemophilous plant, have pollen grains are light and non-sticky. In anemophilous plant have pollen grain is light and non-sticky. After that, we discuss hydrophily. अगर हम हाइड्रोफिली की बात करें तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर. जो पॉलिनेशन होना है, द pollination occurs in water. मतलब अगर वाटर में पॉलिनेशन होना है, वाटर के थ्रू होना है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली. द pollination by water is called as hydrophily. Hydrophily is also abiotic agent. Hydrophily is also done by abiotic agent called water. इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही रेयर होता है और लगभग 30 जनरा, मोस्टली 30 जनरा हैं किसके? मोनोकाट के. जैसे आप जानते ही हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला and Zoastera are the common example of
hydrophilous plant. You say that the plants in which pollination done by water is called hydrophilous plant. That means जिस मीडियम के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, जैसा कि वाटर के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको, इस तरह के प्लांट्स को हाइड्रोफिलस प्लांट कहा जाता है। तो जो इसमें जो होंगे जितने भी प्लांट्स होंगे सबके सब एक्वाटिक होंगे। कैसे होंगे? एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स द प्लांट्स ग्रोज इन वाटर। प्लांट्स ग्रोज इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। एक्वा मीन्स वाटर। इसमें जो होगा वो पॉलन ग्रेन जो रिलीज होगा वो कहाँ पर रिलीज होगा? सरफेस ऑफ वाटर और कैरीड बाय वाटर करंट टू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट्स। इन सी ग्रासेस द फ्लावर्स रिमेन्ड सबमर्ज्ड। जो समुद्र में सी ग्रासेज हैं, घासें हैं, समुद्री घासें हैं, उनमें जो उनके फ्लावर्स होते हैं वो तो सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं। द pollen grains are long, ribbon-like and carried passively inside the water. Pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. जो इसमें जो प्लांट का पॉलन ग्रेन है एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है, कवरिंग होती है, उसी के द्वारा वो कवर रहते हैं ताकि उनमें जो है प्रोटेक्शन का, वो म्यूसिलेजिनस शीट जो होती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। हाइड्रोफिली की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। दैट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain through water is known as hydrophily. हम उसे क्या कह देते हैं? हाइड्रोफिली। ये जो होता है हाइड्रोफिली, aquatic plants make excellent use of water for pollination. Plant like Ceratophyllum, Zoastera, Vallisneria, etc., whose flowers are permanently submerged in water are adapted to pollination by water. Hydrophily is of the following two types. Hydrophily is two types. हाइड्रोफिली जो होती है वो दो तरह की होती है। इसके टाइप्स की बात हो रही है तो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। वन उसका होता है हाइपोहाइड्रोफिली।
हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा होता है इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपी हाइड्रोफिली। यहाँ पर अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की चर्चा करें तो जो हाइपोहाइड्रोफिली है उसे डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स आकर्स बिलो द वाटर। कहाँ पर हो रहा है? बिलो द वाटर हो रहा है। किस में होता है? जैसे कि सीरेटोफिलम और जोस्टेरा में होता है। उसमें होता क्या है कि जो स्टेमेन हैं वो डिटैच होते हैं फ्लावर से और फ्लूट करते रहते हैं अपवर्ड। द एंथर रप्चर ड्यूरिंग द ईयर अपवर्ड कोर्स एंड pollen grains are liberated. These pollen grains are trapped by the sticky lower surface of style which serve as stigma. In Zoastera marina, pollen grains are needle-like. जोस्टेरा का जो pollen grain है वो needle-like होता है और वो स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दे आर coiled around it. उसके चारों तरफ coiled रहते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, when pollination of flower occurs below water, it is said to be हाइपोहाइड्रोफिली। तब हम उसे क्या कह देते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। It is found in submerged plant like Ceratophyllum and Zoastera. Ceratophyllum and Zoastera। अगर हम सीरेटोफिलम की बात की और उसकी बात की तो मैंने क्या बताया कि जो सीरेटोफिलम का स्टेमन है वो डिटैच हो जाता है फ्लावर से और स्टेमन जब डिटैच हो जाता है तो वो फ्लूट करता रहता अपवर्ड और उसके बाद फ्लूट करने के बाद उसका एंथर जो होता है रप्चर होता है। जब उस एंथर जो मैच्योर स्टेज में आता है तो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद जो उसका पॉलन ग्रेन है वो लिबरेट होता, छूट जाता, मतलब वहाँ से निकलता है, लिबरेशन होता है पॉलन ग्रेन का और ये पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं स्टिकी स्टाइल ऑफ सीरेटोफिलम और लोअर सरफेस पर जबकि जो स्टाइल है वो स्टिग्मा की तरह कार्य करती है। ऐसे ही जोस्टेरा मेराइना की अगर हम बात करें तो उसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो नीडल लाइक होता है। नीडल लाइक पॉलन ग्रेन किस में होता है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी नीट में। नीडल लाइक
पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किस में होता है? जोस्टेरा मेराइना। ये सब कैसे हैं? सबमर्ज्ड प्लांट हैं। इनमें जो पॉलिनेशन होना है वो कैसा पॉलिनेशन है? हाइड्रोफिली। अब इसके बाद हम बात करते हैं इपीहाइड्रोफिली की। ये क्या होता है? इपीहाइड्रोफिली। व्हेन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर occurs at the surface of water. When pollination occurs at the surface of water, occurs at the surface of water, it is called इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली। तब उसे हम क्या कह देते हैं? इपीहाइड्रोफिली कह देते हैं। इपीहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसमें आपका है वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया स्पाइरैलिस, स्पाइरैलिस, वैलिसनेरिया स्पाइरैलिस। ये वीड कैसा होता है? ये रिबन लाइक होता है। कैसा होता है? रिबन लाइक वीड। It is a deciduous species with both male and female flower submerged. The male flower, जो इसका मेल फ्लावर है, वैलिसनेरिया का जो मेल फ्लावर है वो ब्रेक होता है और फ्लूट करता रहता है कहाँ पर? सरफेस पर। जबकि फीमेल फ्लावर क्या है? ऑन द मैच्योरिटी रेज्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्पाइरल स्टॉक। बाद में इसका जो लॉन्ग स्पाइरल स्टॉक होता है वो बाहर की तरफ फीमेल फ्लावर आता है आफ्टर द मैच्योरिटी। प्री फ्लूटिंग मेल फ्लावर गेट lodged on the female flower, bringing open anther in the contact with the stigma. After pollination, the female flower is withdrawn inside the water by coiling of stalk when develop of fruit take place. हम इसके एग्जाम्पल को और आसानी से देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर के द्वारा कैसे होता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी बना हुआ है। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं बनाने की, देखते हैं कैसे बना है। मैंने क्या कहा कि जो ये वैलिसनेरिया है कैसा प्लांट है? सबमर्ज्ड प्लांट है। कैसा है? सबमर्ज्ड प्लांट है। इसका जो मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है, और ये रिबन लाइक होते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। इसका मेल फ्लावर बेस की तरफ लगा रहता है और उस बेस में ये एंथर लगा हुआ होता है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है? रिबन लाइक। ये रिबन लाइक प्लांट्स हैं।
इसमें जो वेनेशन होता है या वो कैसा होता है, स्पाइरल की बजाय ये प्लांट कहाँ रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं। वो कहाँ पर, वाटर में। ये वाटर सरफेस है। ऐसे ही फीमेल प्लांट है, ये तो मेल प्लांट हो गया, मेल प्लांट। और अगर हम फीमेल प्लांट की बात करें तो जो फीमेल प्लांट है वो भी रिबन लाइक ऐसा रहेगा। इसका जो फीमेल फ्लावर होगा वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होता है, सरफेस पर ओपन होता है। कहाँ पर ओपन होगा, सरफेस पर, बाहर की तरफ ओपन होते हैं। और ये इसकी जो स्टाइल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पर इसके जो पॉलन ग्रेन हैं यहाँ से रिलीज़ होते हैं और उसके बाद ये फ्लूट करते रहते हैं। कहाँ पर, सरफेस ऑफ वाटर। और यहाँ से ये इसके पास पहुँचते हैं थ्रू द वाटर करेंट। और आप इसके बाद जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन के बाद ये पुनः फिर से अंदर की तरफ, मतलब वाटर में, बिलो वाटर की तरफ फिर डूब जाता है। ये है फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर है, मेल। ये है फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। मेल फ्लावर से क्या निकला, पॉलन ग्रेन। ये इसकी स्टिग्मा है। These are all about hydrophily. After that we discuss entomophily. After the discussion of hydrophily we discuss entomophily. Entomophily, pollination by insect. Pollination by insect. That means the transfer of pollen grain, transfer of pollen grain through the agency of insect is known as entomophily. The angiosperm are as whole or more depend on insect for pollination than any other agency. Insects can carry a small amount of pollens from the anther of one flower and deposited it other flower of the stigma. They visit flower in search of pollen or nectar. Pollen sac और नेक्टर। जो इंसेक्ट होते हैं वो इसलिए टहलते रहते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर
किसकी खोज में? नेक्टर की खोज में। जो प्लांट जिस प्लांट में एंटमोफिली होती है, जिन प्लांट्स में, उन्हें हम कहते हैं एंटमोफिलस। क्या बोलते हैं? एंटमोफिलस। The plant that pollinated through insect is called entomophilus. एंटमोफिलस। उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? एंटमोफिलस कहेंगे। और इसके लिए जो एजेंसीज हैं या इसके लिए जो भी विजिट करते हैं पॉलन ग्रेन के लिए, उसके लिए जो एडाप्टेशन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक तो उसका कलर अट्रैक्ट करता है, दूसरी चीज़ लार्ज एंड ब्राइट कलर्ड पेटल्स होती हैं, सेंट होता है और नेक्टर होता है। वो क्या करते हैं? उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।